Dear students, welcome. Today we are going to discuss and start a very interesting new chapter, and the chapter is Cell, the fundamental unit of life. So let's get started. Let's first talk about the discovery of cell. So in 1665, it is not 1965, in 1665 Robert Hood made a chance discovery of cell through a self-designed microscope, and he examined a very thin slice of cork. Cork क्या है? एक तरह की लकड़ी होती है, उसको उन्होंने ये जो खुद एक उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे उन्होंने इसको एग्जामिन किया, एंड ही सॉ दैट देयर वाज small polygon structures which were visible, and he named these structures as cells. So what is a cell? Cell basically means a little room. So these small structures, they resemble little rooms, right? And therefore he named these small polygonal structure which he examined in the cork slice as cells. Okay, so let us go further. Now what is a cell? So what is a cell? The bodies of living organisms are made up of very minute microscopic structures, and these structures are known as cells, right? And therefore we call the cells as the structural and functional unit of living organisms. Why? Because all the living organisms are made up of cells. They may be unicellular, that means which have only one cell, or multicellular like humans which have trillions of cells. But every living organism is cellular in structure, that means it is made up of one or more cell. Therefore it is structural unit of life. Also every cell performs some basic functions which are performed by a large organism also. Therefore it is also known as the functional unit of life also, right? So now what are the types of organisms on the basis of number of cells? So on the basis of number of cells, organisms have been categorized either as unicellular organisms which have only a single cell, which are made up of only one cell, and multicellular organisms which have more than one cell, even billions and trillions of cells like humans, right? So let us first examine the unicellular organisms. So bacteria basically are unicellular, they are made up of single cells, right? Similarly amoeba, which is very commonly found in stagnant water, it is also unicellular. Yeast, these are fungal cells, they are also unicellular, right? So organisms which consist only of a single cell and they can independently survive are known as unicellular organisms. Example, Chlamydomonas, Paramecium, bacteria, they are all examples of unicellular organisms. So I hope that you are able to understand unicellular organisms. Now what about the multicellular organisms? So multicellular organisms, they have more number of cells, more than one. So collection of different cells which are specialized to perform particular functions which are known as the tissues. So those all organisms which have more than one cell, and we will go into the detail about the tissues also in the coming chapter. So all those organisms which have more than one cell are known as multicellular animals, or multicellular organisms rather. Animals and plants both are multicellular. जिसमें भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई भी हो, ठीक है, अगर उसमें एक से ज़्यादा सेल है तो वो मल्टीसेलुलर है. अब मल्टीसेलुलर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो आई होप मल्टीसेलुलर. नाउ the cells basically can be of different shapes and sizes according to their functions, ठीक है? तो according to cells from the human body के कुछ cells को हम देखते हैं और जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा एक दूसरे से अलग है. अलग क्यों हो गया? क्योंकि उनको अलग अलग टास्क दिया हुआ है. सपोज दिस इज द स्मूथ मसल सेल. स्मूथ मसल सेल कैसा है? स्पिंडल शेप्ड है,
These are blood cells, RBC, WBCs, nerve cells, न्यूरॉन लंबा सा होता है। Then we have ovum. ओवम जो है वो ह्यूमन बॉडी का बिगेस्ट सेल है, 1 मिलीमीटर तक इसकी साइज हो सकती है और उसको नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। देन वी हैव बोन सेल्स जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। स्पर्म सबसे छोटा सेल बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल स्पर्म मेल्स में, राइट। एंड दिस इज फैट सेल, आप देख सकते हो फैट सेल में ये न्यूक्लियस और ये पूरा क्या है स्टोर्ड, फैट्स स्टोर्ड है। सो दिस इज अ फैट सेल और जितना ज्यादा उसमें फैट स्टोर होगा उसका साइज उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस क्या है, सो लेट अस गो इनटू द डिफरेंस। सो अब इन सब सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग को अलग अलग काम दिया हुआ है, राइट। सो डिवीजन ऑफ लेबर जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी एज ए हार्ट टू पंप ब्लड, ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, राइट। अ स्टमक डाइजेशन ऑफ फूड एंड सो ऑन। तो अलग अलग ऑर्गन को हमने क्या दिए हुए हैं, अलग अलग टास्क दिए हुए हैं। नाउ दिस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सो ईच सच सेल, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना, या बैक्टीरियल सेल भी है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसलिए हम एक यूकैरियोटिक सेल ही लेते हैं, जैसे अमीबा है समझ लो, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस टू डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो अलग अलग सेल के ग्रुप्स जिसको हम कहते हैं टिश्यूज, उनको हमने अलग अलग काम दे दिया। टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं उनके बारे में क्या, तो उनमें भी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मीन स्मॉल ऑर्गन्स। नाउ स्पेसिफिक टास्क आर गिवन टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, तो वो जो ऑर्गेनल्स हैं जिनको उनका लिटरल मीनिंग होता है, ऑर्गेनल्स का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल ऑर्गन, उन ऑर्गेनल्स को एक एक काम, अलग अलग काम दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू go into the detail. So even within a single cell, each cell has got certain specific components within each cell and these organelles are known as the little organs. Little organs को हम क्या बोल रहे हैं, organelles, और इन organelles को अलग अलग specific टास्क दिया हुआ है। सो दे आर लाइक ऑर्गन्स। सो दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट विच इज द सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन। बहुत बड़ी बात है, जो भी सेल्स हैं, जो सेल है, जो हमारा सेल है, अगर मैं बात करूँ एक प्लांट सेल से मैं कंपेयर करूँ तो उस सेल के अंदर बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन कॉमनलिटीज आर मोर। डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स में आते हैं और जो प्लांट्स हैं वो उनकी कैटेगरी अलग है, तो कुछ डिफरेंसेस होंगे लेकिन फिर भी ओवरऑल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल का वो क्या है, लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, जो हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ सेल साइज वेरीज ओवर अ ब्रॉड रेंज। जो सेल है उनकी साइज अलग अलग वेरी हो सकती है, बहुत छोटे से बहुत बड़े तक। तो लेट अस सी व्हाट आर द वेरिएशंस, कितने वेरिएशन है। सो मोस्ट सेल्स आर ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप्स, है ना। तो हमारे सेल इजीली विजिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया जो हमारा सबसे बड़ा सेल है जो फीमेल्स में मिलता है जनरली ओवम, वो 1 मिलीमीटर का होता है, तो वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेल्स को हम नहीं देख सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप, राइट। एंड दे हैव वेरी फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसलिए बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही। लेकिन आप देख सकते हो, अब ये जैसे देखो, ये मेरीन एल्गा है, ये एसिटाबुलेरिया, अब इसका 10 सेंटीमीटर का एक सेल होता है, तो 10 सेंटीमीटर का सेल आराम से देख सकते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का एग इट इज लार्जेस्ट सेल, एक सिंगल सेल होता है और कितना है उसका, देखो आप 18 सेंटीमीटर साइज है, 18 सेंटीमीटर आराम से देख सकते हो। सो दिस इज द लार्जेस्ट एग, ठीक है। हो सकता है डायनासोर जो थे उस समय, डायनासोर का एग उस समय सबसे बड़ा सेल होता है, राइट। लेकिन सबसे छोटा सेल
माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, गैलीसेप्टम, इसका सेल की साइज क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1। और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है आपको मालूम है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻�6 मीटर, तो 0.1 माइक्रोमीटर। तो अब आप देख सकते हो कि सेल की साइज में भी कितना वेरिएशन है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर, तो कितने छोटे से लेके काफी बड़े तक, ठीक है। सो दीज आर दी वेरिएशंस। सो द साइज ऑफ द टिपिकल सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज बिटवीन 20 to 30 माइक्रोमीटर। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे, उनके सेल्स की जो एवरेज साइज है वो कितनी है 20 से 30 माइक्रोमीटर्स के बीच में है। नाउ सेल वॉल्यूम एंड नंबर, तो सेल की साइज देख ली, अब सेल का वॉल्यूम कितना, उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है या वो कितना स्पेस घेरता है, वॉल्यूम, राइट, एंड द नंबर, कितने नंबर हैं सेल्स में। सो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेल टाइप। किडनी सेल्स ऑफ अ हॉर्स, बुल और माउस विल बी ऑफ द सेम साइज। तो वॉल्यूम के मामले में ज्यादातर सेल के कांस्टेंट वॉल्यूम रहते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं किडनी सेल्स लेता हूं, एक हॉर्स के, एक बुल के और एक माउस के, तो उन सबके जो किडनी सेल्स हैं उनका वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। नंबर ऑफ सेल्स, अगर किडनी बड़ी है तो ज़्यादा होंगे, अगर वो ऑर्गेनिज्म छोटा है साइज में तो नंबर ऑफ सेल्स किडनी में कम होंगे, लेकिन हर सेल का जो साइज है वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफर नहीं करता और वॉल्यूम भी डिफर नहीं कर रहा है इस केस के अंदर, राइट। नाउ नंबर ऑफ सेल्स, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज को रिलेटेड विद द साइज, साइज से को रिलेटेड है। किस तरह से साइज से को रिलेटेड है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करता हूं कि एक माउस की, ठीक है, या एक एंट की, एंट चींटी, ठीक है ना, और एक बात करता हूं मैं ह्यूमन की, और एक मैं बात करता हूं एलिफेंट की, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो माउस और एंट है ये इनकी बॉडी साइज बहुत छोटी है, इसलिए इनमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो क्या होगा, लेस होंगे। नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे वो लेस होंगे, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस है, एलिफेंट्स है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, मोर होंगे। लेकिन सेल के साइज में डिफर नहीं होगा। जो माउस में सेल की साइज है, जो एंट में सेल की साइज है, वही सेल की साइज ह्यूमन और एलिफेंट्स में भी है, लेकिन सेल के नंबर ज्यादा है। तो समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेल की साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन सेल के नंबर में वेरिएशन आएगा अकॉर्डिंग टू दी बॉडी साइज, बॉडी की साइज के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस गो टू दी रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जनरेशन ऑफ मोर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ओके। सो रिप्रोडक्शन, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो अगर एक स्किन का सेल अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो वो उसी तरीके का सेल बनाएगा, वो और दूसरे तरह का सेल नहीं बना सकता। सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स कि जो नए सेल आते हैं वो हमेशा जो पहले सेल थे उनके डिवीजन के कारण आते हैं, उनके रिप्रोडक्शन के कारण आते हैं। तो अभी जो जनरेशन है ह्यूमंस की वो किस लिए है, क्योंकि उनसे पहले वाली जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया तो अभी जनरेशन आई। नेक्स्ट जनरेशन कब आएगी, जो अभी जनरेशन है उसके जब रिप्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। सिमिलरली जो अभी सेल्स है, सेल्स विच आर एट प्रेजेंट दे आर एग्जिस्टिंग, दे हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, जो इससे पहले सेल्स थे, जो इससे पहले सेल्स थे उनमें जब डिवीजन हुआ, उनमें जब रिप्रोडक्शन हुआ तो ये सेल्स आए हैं, है ना। ये सेल्स हवा से ऑटोमेटिकली नहीं आ सकते, दे कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ सेल का शेप कैसे, हमने देखा ना अलग अलग सेल के अलग अलग शेप हो सकते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, उनके काम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब काम पे डिपेंड करते हैं, देखो सम सेल्स लाइक एमीबा हैव चेंजिंग। अब ये काम पे कैसे डिपेंड करते हैं, जस्ट एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने कि अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, है ना, न्यूरॉन की, तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप बहुत लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये इसको क्या करना है, मैसेज को एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, मैसेज को पहुंचाना है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, लंबा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक आरबीसी की,
रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो वो कैसा काम करेगा, वो इस तरीके का होता है, ऐसा बाई कॉन्केव शेप, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल्स हैं उनका शेप, उनको जो फंक्शन दिए हुए हैं, उनको जो टास्क दिए हुए हैं, उसके हिसाब से वेरी करता है। लेकिन फंडामेंटली उनके अंदर भी सेम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और फंडामेंटली वो सेल का स्ट्रक्चर हर सेल का एक जैसा होता है, लेकिन उनके स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ सकता है, राइट। द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जो उनको स्पेसिफिक फंक्शन दिए हुए हैं वो और अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं, उसके कारण उनके स्ट्रक्चर और साइज में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, राइट। नाउ सम सेल्स, अब अमीबा होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज नॉट डेफिनाइट, स्ट्रक्चर डेफिनाइट नहीं है, वो चेंज होते रहता है। इट इज लाइक फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी जैसे बहता है वैसे ये बहता है और इसका शेप बार बार चेंज होते रहता है। सो इट डज नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप, द शेप it constantly gets changed. So in some cases the cell shape would be more or less fixed, right, and particularly for a particular type of cell, for example nerve cells have a typical shape। जैसे ये न्यूरॉन का शेप है, वो हमेशा न्यूरॉन इसी तरीके से धागे जैसे होंगे, लंबे लंबे। जो आरबीसी का सेल है तो वो कैसा होता है, एक डिस्क शेप होता है। अब वो डिस्क शेप में कैसा होता है स्ट्रक्चर, वो ऊपर और नीचे उसमें कॉन्केव शेप होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गन या जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ है जिनको अलग अलग हमने काम दिया हुआ है, तो उनके जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका शेप और उनकी साइज कुछ वेरी हो सकती है, उनको टास्क जो दिया हुआ है, उनके जो फंक्शन है उसके हिसाब से, राइट। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, बहुत कॉमन है इन सब चीज़ों में, राइट। सो लेट अस गो फर्दर एंड स्टडी। So therefore we say that the cell is the basic functional and structural unit of life. So in the next video we are going to discuss about the various cell organelles. Thank you very much.